everyone, welcome back to Mumbai and Far Out. It's me again. I recently visited to Lonavala, which is between Mumbai and Pune on Mumbai-Pune Expressway, and I'm super excited to share some new experiences with you guys. So get ready to witness the stunning views, find inner peace in nature's embrace, and enjoy even the smallest moments of life. Let's dive into the beauty of Lonavala together. If you guys are thinking कि लोनावला में है क्या, तो let me tell you कि जान बसती है मुंबई वालों की यहाँ. लोनावला is the perfect weekend place जहाँ पर आप अपने stressful life से थोड़ा break ले सकते हो, nature को explore कर सकते हो, life के beautiful moments को spend कर सकते हो, and शांति का एहसास कर सकते हो. Lonavala allows you to forge a deeper connection with yourself. I started my road trip from Mumbai and soon hit the Mumbai-Pune Expressway, जिसके बारे में I don't think कि मुंबई के people से अच्छा कोई जान सकता है. I mean the views along the way were absolutely mesmerizing. लोनावला पहुंचने से पहले खंडाला आता है, जहां मैंने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया था to praise its beauty. और यहाँ जब भी मैं आती हूँ तो मुझे एक ही गाना याद आता है. हाँ वही, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला. Oh god, that song on the hills of Khandala is just wow. I visited some of the famous spots of Khandala like Rajmachi Garden, Reversing Point and Waterfall Viewpoint. But to know more about it, you will have to wait for my next vlog. तब तक के लिए लोनावला के नज़ारे और रंगीन वादियों में बारिश का मज़ा लेते हैं. Hey everyone, welcome to Khandala Lonavala Highway. This scenic route connects Mumbai and Lonavala and is known for its breathtaking views, mouth-watering delicacies and charming hill stations. So get ready for an unforgettable journey on Khandala Lonavala Highway. Let's go! यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का जादू सब कुछ बदल देता है. यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही है खंडाला की शाम की खासियत. मैंने पहले से ही ऑनलाइन होटल बुकिंग कर लिया था, सो आई वेंट स्ट्रेट टू माई होटल रूम और फ्रेश होने के बाद आई विजिटेड अ स्पेशल प्लेस जो आपको महाबलेश्वर की याद दिला देगी और झलीज के लिए उतनी दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली ओपन मैप्रो गार्डन इन लोनावला. Hey everyone, welcome to the world of newly opened Mapro Garden in Lonavala. तो मैप्रो जो है वो महाबलेश्वर का ब्रांड है, जिसमें मा का मीन्स महाबलेश्वर है एंड प्रो का मीन्स प्रोडक्ट है. सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट? इफ यस, देन स्टे ट्यून्ड. दे हैव सैम्पलिंग काउंटर्स जहाँ पर आप जितना चाहो उतना प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो. मैंने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए ऑन देयर सैम्पलिंग काउंटर्स. ऑफकोर्स ये बेस्ट पार्ट है मैप्रो का. यहाँ पर आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे हर चीज़ के. लाइक खाखरा में बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे, जेलीज़ में बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे एंड इवन कुकीज़ एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. और यहाँ पर आपको सैम्पलिंग काउंटर के लिए एज अ सैम्पल आपको टेस्ट करने या आप ट्राई कर सकते हो सारी चीज़ों को लेने से पहले. If you are a foodie like me, your taste buds are in for a real treat. When you enter, you will see several large sections of each food item. Starting with the syrup and mojito section, it's like stepping into a rainbow. Mapro's fruit syrups are perfect for making refreshing drinks and cocktails. With flavors ranging from tangy lemon to exotic kiwi, you are sure to find syrups that will make your taste buds dance with joy. यहाँ पे हर एक चीज़ को लेने से पहले यू कैन टेस्ट इट फर्स्ट एट द सैम्पल काउंटर एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने टेस्ट किया तो आपको लेना ही होगा. मैं गई कुछ अलग अलग फ्लेवर्स टेस्ट करने मोहितो के एंड ऑल ऑफ देम वर क्वाइट गुड, सो आई टुक 2 bottles फ्रॉम देयर. Calling all chocolate lovers, Mapro doesn't just specialize in fruity treats. Their chocolates are equally delightful. You will see a large compartment of chocolates with different varieties. Again, I went to the sample counter to taste some of them. ये okay था taste में. More than 20 varieties of chocolates. Not only this, chocolate से बने हुए spreads, sauce and drinks भी present है. This chocolate section is a heaven for anyone with a sweet tooth.
पूरा मैप्रो घूमने के बाद मैंने कुछ जेलीज, मोहितो एंड मिल्क शेक्स बाय किया। ओके, सो मेरी शॉपिंग मैप्रो में कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं अभी इसके पीछे ही प्रेजेंट गार्डन में जा रही हूँ और वहाँ पर वॉशरूम और एक क्यूट सा रेस्टोरेंट भी है जो आपने पीछे ऑफकोर्स देख ही रहे होगे। सो अभी मैं वहाँ पे गार्डन में एंजॉय करने के बाद यहाँ रेस्टोरेंट में खाने जाऊँगी। तो बाय। एंड फिर मैंने उनके गार्डन एरिया में गई एंड देयर गार्डन इज़ रियली फोटोजेनिक, मीन्स उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन करके रखा है। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है फॉर स्नैक्स एंड जंक्स। मैंने यहाँ पे एक कॉर्न सूप एंड पिज्ज़ा ऑर्डर किया था एंड ऑफ कोर्स मैप्रो में आने के बाद हाउ कैन समवन रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम ट्राइंग द फेमस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद फ्रेश क्रीम एंड फ्रेशली चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज। यम, इट्स टू टेम्पटिंग। फूड वॉज गुड बट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मेरा फेवरेट था। बाय द वे, फुल मैप्रो लोनावला का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। मैप्रो से निकलने के बाद मैं डिनर के लिए गई एंड वहाँ से फिर अपने होटल रूम। Beside this, there is a section of jellies. OMG, jellies, one of my favorite sweet snacks. I love jellies a lot. लोनावला आते टाइम मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ के जेलीज, चिक्की एंड फजेस के लिए ही थी। वैसे तो सब मुझे लोकल शॉप से लेना था एंड मैं वहाँ के फेमस मगनलाल शॉप से ही ली हूँ, बट जेलीज देख के मन भरता ही नहीं है। So I purchased a packet of it from Mapro also. यहाँ की जेली की क्वालिटी अमेजिंग है at an affordable price. You should definitely go for this. Not only this much, यहाँ मैप्रो में you will find cookies का अलग सेक्शन, नाचोस का सेक्शन एंड फ्लेवरफुल स्प्रेड्स का भी। आस्क में क्या नहीं है यहाँ। सबसे अच्छी बात है कि आप सब कुछ टेस्ट करके ले सकते हो। मैप्रो में एक्चुअली प्रॉपर डिनर तो नहीं मिलता, हमने वहाँ पे स्नैक्स किया और अभी हम प्रॉपर डिनर के लिए मम्मीज़ होमली फूड में आए हैं जो कि जस्ट ऑपोजिट है मैप्रो के। सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी एंड उठने के बाद मैंने कुछ रील शूट किया एंड देन रेडी होने के बाद आई हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस जिसे हमने बचपन में अपने हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज के बुक्स में बहुत रट्टा मारा है। यस, कार्ला एंड भाजा केव्स। तो पहले कार्ला केव्स चलते हैं जो कि एक बुद्धिस्ट रॉक कट केव है एंड यहाँ पे एकवीरा माँ का भी मंदिर है। केव्स पहुंचने के लिए आपको 1 आवर का एक छोटा सा ट्रैक भी करना होगा, बट डोंट वरी, यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर्स है फॉर ईज। वाओ, जस्ट लुक एट दिस पैनोरामिक व्यू, इजंट इट टू ब्यूटीफुल? स्टेयर्स चढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा था, बट एज सून एज यू रीच टुवर्ड्स केव आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। टॉप से व्यू एंड केव्स दोनों ही बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक तरफ एकवीरा माँ का मंदिर था और एक तरफ कार्ला की गुफाएं।
हम पहले एकवीरा टेम्पल गए। एकवीरा माँ हिंदू गॉडेस है एंड शी इज़ रिगार्डेड टू बी अ फॉर्म ऑफ द गॉडेस रेणुका। शी इज़ द कुलदेवी ऑफ द कोली पीपल और हर साल कोलीज एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कार्ला केव्स में टू गिव रेस्पेक्ट टू एकवीरा माँ। इनको आई एकवीरा माता मराठी में कहा जाता है। टेम्पल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। टेम्पल से निकलने के बाद मैंने कुछ रील शूट किया जो आप हमारे इंस्टा ID @mumbai_and_far_out पे जाके देख सकते हैं। ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Then I was super excited to explore the historic Karla Caves. Hey everyone, welcome to Karla Caves. सो कार्ला केव्स लोकेटेड है लोनावला में और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स और ये 2nd सेंचुरी BC में बनाया गया था। लाइक यू कैन इमेजिन 2500 ईयर्स पुराना है ये। सो आज मैं उसी को एक्सप्लोर करने आई हूँ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? इफ़ येस देन लेट्स गो। जस्ट सी, बुद्ध की वो कहानियाँ जिन्हें हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे, विच विल अपीयर बिफोर यू। तुम वहाँ खुद को उस समय की दुनिया में महसूस कर सकते हो जब महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान बांटा था। और इवन आदिमकालीन सांस्कृतिक धरोहर के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जब वहाँ पर जाएंगे ना गुफाएं में, तो यू विल आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने टाइम ट्रैवल करके जस्ट वहीं पर उस समय में ही जा पहुँचे हो। यहाँ पर 4 टिकट्स लिए हैं ऑफ 25 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए जो बिलो 20 ईयर्स है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी टिकट्स नहीं है। सो वो उनका फ्री ऑफ एंट्री है एंड ये केव आपको पूरा 1 आवर के अंदर घूमना होता है। तो अभी हम कार्ला केव्स के अंदर है एंड आप तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है यहाँ पर। और मतलब इतना सोच करके भी होता है ना 2500 ईयर्स पहले कितना ज़्यादा बारीकी से इन्होंने वर्क किया है एक एक चीज़ों को। एक एक पिलर्स एकदम शेप में है, एकदम जो ऊपर के जितने भी ये है डिज़ाइंस है वो सारे एकदम शेप में है। एंड दिस स्तूपा वो जो बुद्धिस्ट का स्तूपा है वो भी उन्होंने केव को एकदम कट करके बनाया है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उतरते वक्त सीढ़ियाँ करीब 300 स्टेयर्स है। यहाँ पर स्टेयर्स चढ़ते वक्त तो बहुत थकान होती है, बट उतरते टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उतरते टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। कार्ला केव से उतरने के बाद बैक उसी रास्ते पे 6 किलोमीटर तक लोनावला हाईवे को क्रॉस करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स क्रॉस करना पड़ता है। फिर यू विल फाइंड अ रेलवे क्रॉसिंग विच इज एडजेसेंट टू मालवाली रेलवे स्टेशन। Thereafter 4 more kilometers and you will reach Bhaja Caves.
अगेन 255 स्टेयर्स एंड वी वर टायर्ड एनफ टू गो अप हिल्स, लेकिन बगल में एक सुंदर झरना था जिसमें हमने नहाया और बहुत मस्ती की। तो अभी मैं भाजा वाटरफॉल्स आई हुई हूँ। भाजा वाटरफॉल भाजा केव्स जहाँ पे वहीं पे है। भाजा केव्स यहाँ से 200 स्टेप्स और अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो, क्लाइंब करते हो तो आप पहुँच जाओगे। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं वहाँ के आपको दिखाती हूँ, बट अभी प्रेजेंटली मैं यहाँ पर आई हुई हूँ वाटरफॉल्स के सामने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड बारिश नहीं होने की वजह से, बारिश बहुत कम हो रही है अभी, इस वजह से लाइक पानी का फ्लो भी बहुत कम है, बट पीपल बहुत ज़्यादा है, तो हाँ थोड़ा मैस हो गया है। रील शूट करने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस था। वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 आवर्स नियर भाजा केव्स। वाटरफॉल टुक लंच एट नियर बाय रेस्टोरेंट, देन हम वहाँ से लोनावला डैम की तरफ गए। ये एक बहुत ही बिग डैम है इन द सिटी एरिया ऑफ लोनावला इटसेल्फ। ब्यूटीफुल शूट्स कैन बी टेकन फ्रॉम द ब्रिज नियर बाय, जहाँ पर हमने ऑफकोर्स वापस से कुछ रील शूट किया। देन वहाँ पर हम 10 मिनट्स टाइम स्पेंड किए ओनली एज वी हैड टू एक्सप्लोर मेनी अदर थिंग्स इन लोनावला। ओके, सो ये लोनावला लेक है जो मेरे पीछे है। सो ये भूसी डैम जाते टाइम आपको रास्ते में आएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है। आप भूसी डैम जाते टाइम यहाँ पर रास्ते पे रुककर फोटोज़ एंड वीडियोस ले सकते हो। ये इतना सुंदर है दैट आई कांट डिस्क्राइब इन माई वर्ड्स। लाइक मतलब मुझे बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर लोनावला इज़ अ प्लेस जहाँ आप एडवेंचरस रिलैक्सेशन का आनंद ले सकते हैं, और लोनावला गए हो तो वैक्स म्यूजियम में मस्ती और एनर्जी के साथ यू विल रियली इंजॉय। There are many wax museum in the city, but Sunil Wax Museum is the best, which had been made long back by an artist from Kerala, Mr. Sunil. Here you will find व्यक्तियों की wax मूर्तियाँ, like person की wax मूर्तियाँ, and even celebs के, सबसे ज़्यादा आपको celebs की मूर्तियाँ मिलेगी जो कि बिल्कुल सच्ची तरीके से बनाई गई होती है। और adjacent to Wax Museum is a McD. We also enjoyed the food there. Then we proceeded towards Bhusi Dam. लोनावला में भूसी डैम तो सभी जानते होंगे, बट भूसी डैम के पानी से हज़ारों की भीड़ में साथ नहाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसी मस्ती और इतने लोगों को साथ नहाते कभी देखा है? सब लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, इंजॉयमेंट के साथ वहाँ पर नहा रहे थे, एंड देयर एड्रेनल रश इज़ हाई। सचमुच एंटरटेनमेंट और मस्ती का धमाल है लोनावला। इट वॉज सो मच फन। I had not seen so many people bathing together in natural stream anywhere in India ever. रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ ऑलवेज़ भीड़ रहता ही है, हमेशा क्राउड रहता है। अगर आप इवन मतलब वीकडेज़ में भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे क्राउड मिलेगा मॉनसून सीजन्स में। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। भूसी डैम एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला डैम है जो इंद्रायणी रिवर पे है, लोनावला के एकदम पास में। एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्पॉट हो सकता है ये, और यहाँ बहुत सारी रील्स है। बहुत मतलब इंस्टा पे आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी रील्स मिल जाएगी भूसी डैम के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मज़ा मानसून में आता है, जब इस डैम का पानी इतना झकास ओवरफ्लो करता है कि वाटरफॉल का वाटरफॉल टाइप बन जाता है। ये डैम वाला सीन के आसपास वाले पहाड़ों और हरा भरा वातावरण से घिरा हुआ है, जिससे ये एकदम रंगीन लोकेशन बन जाता है आने वाले लोगों के लिए।
अच्छी बात यह है कि डैम में तैरना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पानी का फ़्लो का कुछ भी सीन हो सकता है। लाइक डोंट वरी, आप स्टेप्स पे चढ़ सकते हो और डैम के मज़े ले सकते हो। पानी जो ओवरफ्लो करता है वो स्टेप्स पे से बह के पत्थरों वाले एरिया में गिरता है। सो आपको कोई भी वहाँ कोई भी डेंजर नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। मॉनसून में तो तूफ़ान मच जाता है डैम के पास। लाइक आसपास के लोग जो वहाँ जाते हैं वहाँ वाटरफॉल की मस्ती देखने के लिए। और अगर ज़्यादा डैम की जो पानी का फ़्लो है वो ज़्यादा अगर होने लगता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको अपने आप ही वहाँ से निकलने के लिए बोल देंगे। भूसी डैम जो है ना वो बहुत ही वर्थ इट है। लाइक इतनी पब्लिक होने के बाद भी हमने बहुत इन्जॉय किया। सो यू गाइज कैन ऑल्सो कम अगर आप लोनावला ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। भूसी डैम लास्ट लोकेशन था जहाँ पे मैं विजिट की। लोनावला का ये ट्रिप बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। फिर भूसी डैम से निकलने के बाद वहाँ से पानी का फ़्लो क्रॉस करके जैसे ही हम रोड पे आए तो फीट मसाज विद फिशेस का मौका मिल गया मेरी सिस्टर को, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में था। उसने एक्वेरियम में पैर डाल दिया, फिर तो हज़ारों छोटी मछलियाँ उसके पैरों को काटने दौड़ी। वो डर गई थी पर फिर सब कुछ एडजस्ट हो गया। फिर तो उसको इतना ज़्यादा मज़ा आया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक उसने अपने पैर को फ़िश एक्वेरियम में रखा और छोटी छोटी मछलियाँ उसके पैर को मसाज करती रही। कहते हैं बहुत ही हेल्दी होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऐसा मसाज। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। सो 100 रुपीज़ में फ़िश मसाज वॉज रियली वर्थ इट। मुझे बहुत मज़ा आया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो आपको मेरे रिएक्शन से ही पता चल गया होगा, बट बाद में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद लोनावला की सबसे प्यारी चीज़ दैट इज़ लोनावला की मगन लाल की चिक्की। ओह गॉड, कितने सारे फ्रेंचाइज है यहाँ मगन लाल के सब जगह टेस्ट वही। कम से कम 20-50 लाइक तो मगन लाल की चिक्की की दुकान हम लोगों ने खुद देखी है। Most of the shops of Maganlal Chikki were well lit and impressive, and of course the chocolate was just to die for in these shops. Anyone who says otherwise is lying. अब शाम हो गई थी और हमें घर लौटना था। लोनावला से मुंबई की ड्राइविंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से इतनी स्मूथ है और हर जगह सुंदर नज़ारे। लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग पनवेल क्रॉस कर चुके थे और फिर नवी मुंबई क्रॉस किया। स्मूथ सी ड्राइविंग। लोनावला और खंडाला के घाट देख के लगता है जैसे ज़िंदगी ने डांस फ्लोर पर कदम रखा हो। ये जगहों की खूबसूरती सावन के मौसम में तो और भी ज़्यादा रंगीन हो जाती है। लोनावला खंडाला दिल खुश कर देने वाली जोड़ी है यार। There is something soothing about watching hills and greenery, and Lonavala has these views in abundance. So yeah, this is all about Lonavala, but Lonavala trip is amazing. I'm planning to make separate videos for Karla Caves, Mapro Garden and Khandala. If you want to know more about these small places of Lonavala, revisit our channel after few weeks. Thank you, and please don't forget to subscribe the channel Mumbai and Far Out. Okay, so let me now come to the details how to go to Lonavala. It's 100 km from Dadar and almost same from Andheri, Thane. Many trains running towards Pune has stoppage here. There are buses that will take you directly to Khandala Ghat or Lonavala, whichever you want to visit first.